Good Gamer presents the cricketnews.com podcast season review, not preview. अभी हमने प्रीव्यूज ढेर सारे कर लिए, बहुत सारे प्रीव्यूज हो गए. मैं थक गया हूँ, मेरी आंखें देखिए आप. 70 घंटे काम किया है मैंने प्रति वीक. सभी ने 70 घंटे काम किए हैं ऑलमोस्ट. हम सब थक गए हैं, लेकिन एक सीजन ऐसा रहा है जिस which has given us a lot of happiness. It has come at a time where the world was in a very tough place, continues to be in a tough place. लेकिन the advent of this season of the cricket has brought a lot of happiness, has brought a lot of joy to a lot of people. Cricket ऐसे मौके पे आया है, ऐसे अवसर पर आया है कि it has changed a whole lot of things. And now if the news is troubling you, you can switch to another channel. If the front page of a newspaper is troubling you, you can turn to the back page, and you can be sure that you will be happy. And that's exactly what this season has done. Credit to, of course, the BCCI and all the stakeholders. It's been absolutely amazing. जुड़ रहे हैं हमारे साथ former KKR keeper batsman Manvinder Bisla, and also not former but current KKR fan and big time cricket buff, and of course principal correspondent of cricketnews.com Sandeepan Banerjee. I want to start with Manvinder. Manvinder, देखिए मैं पहले इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ संदीपन का आपके साथ कि he is an absolute die-hard KKR fan. Sandeepan, your impressions of Manvinder's 2012 knock. What do you remember about it? Do you remember it like it was yesterday? I'm sure you do. How can you say that? Do you remember it? I just cherished every moment of it, and even मैं भी अभी भी ये देखता हूँ, highlights देखता हूँ उस मैच का. क्या मैच था वो, और मनविंदर ने क्या, वो जो पार्टनरशिप मनविंदर का था, that changed the game. With Callis. And on behalf of all KKR fans, we'd like to thank to Manvinder. I think Manvinder जब उसके मैच टूर्नामेंट जीतने के बाद कोलकाता आए थे, तो उन्होंने देखा था कि अपने कोलकाता में कैसे पूरे ईडन गार्डन्स भर गया था टीम को वेलकम करने के लिए. So I think ना, हम यहाँ पर कोलकाता में कहते हैं कि it's the sports capital of the country. कोलकाता is the sports capital of the country. तो KKR, अगर आप किसी भी केकेआर प्लेयर से पूछे कि केकेआर में खेलने का एक्सपीरियंस क्या है, तो केकेआर में जो प्लेयर्स को प्यार मिलता है वो शायद बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा. सो थैंक यू मनविंदर for that innings and whatever your contribution towards the team. Thank you Sandeepan for still remembering me. But जैसा आपने कहा, still मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कैलकाटा के फैंस हैं और जो केकेआर के फैंस हैं बहुत ही स्पेशल हैं. जिस तरीके से वो अपनी टीम के साथ रहते हैं, अप एंड डाउन में भी उनका साथ देते हैं, और बिल्कुल ऑनेस्ट फैंस हैं. हमेशा आपके साथ रहेंगे. अगर सीजन नहीं भी आपका अच्छा चल रहा तब भी आपको हमेशा बैक करते हैं. और जी बिल्कुल, जैसे 2012 में जब फर्स्ट टाइम चैंपियन हुए तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, सिर्फ मेरे लिए, पूरी टीम के लिए, क्योंकि हम पहली बार केकेआर चैंपियन हुई थी. और जो एक तैयारी कर रहे थे उस चैंपियन बनने के लिए, उस साल उसमें हमें सफलता भी मिली. और उसके बाद जब हम कोलकाता आए और जिस तरीके से फैंस ने हमें रिसीव किया वहाँ पे, तो डेफिनेटली एक स्पेशल मोमेंट है सभी लोगों के लिए जो उस टीम का पार्ट थे. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम देख रही होगी ये पॉडकास्ट, सोच रही होगी आय हाय कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है. These beautiful moments make this podcast special, and I'm very happy to make this introduction between you two guys. लेकिन मैं कोलकाता के मैनेजमेंट को बता दूं कि ये जो कलर कोऑर्डिनेशन हुआ है ब्लैक का हमारे बीच, this is not planned. This is not planned. We did not plan to talk about KKR on this podcast and wear black because of your former colors, but this is purely coincidental. And we are obviously gathered here to talk about the season as a whole. कोलकाता के बारे में obviously हम बात करेंगे at a later stage. लेकिन मनविंदर, ओवरऑल एक बहुत ही खास IPL सीजन था ये, for many reasons. The pandemic of course being an important factor. During the pandemic, being organized with such professionalism, not a single case, nothing went wrong. और क्रिकेट की क्वालिटी जो निखर के आई है through this season has been top notch. So what have been your thoughts of this season? जी हाँ, बिल्कुल ही. मैं तो कहूँगा एक स्पेशल चीज ऑर्गेनाइज करना आईपीएल, लाइक अगर आप बात करते हैं इंडिया के क्रिकेट के बारे में, एक बहुत ही एक लाजवाब टूर्नामेंट है. और इसके लिए लोग वेट करते हैं, फैंस अपनी अपनी टीम्स के लिए वेट करते हैं कि कब वो सीजन आएगा. अप्रैल और मई का महीना आएगा जब वो जाके वो मैचेस देखेंगे, अपनी टीम को बैक कर सकते हैं. तो और ऊपर से जब पैंडेमिक में जो चल रहा था, 5-6 महीने से आपने कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं देखी थी. स्पोर्ट्स पेज धीरे धीरे न्यूज़पेपर से गायब होता जा रहा था.
न्यूज में कुछ भी स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज नहीं आती थी, और अब हमेशा एक कोविड के बारे में न्यूज चल रही थी, और थोड़ा सा अब उस चीज से हट के एक एनर्जी लेके आता है स्पोर्ट्स आपके लिए, आपके लाइफ के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं कि आपको पैंडेमिक को छोड़ के भी आप कुछ अच्छी चीज देख रहे हैं, लाइव स्पोर्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूरोप में फुटबॉल क्रिकेट हमसे पहले शुरू हो गया था, तो अगर वो शुरू कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं शुरू कर सकते। जो हमारा एक प्रीमियर टूर्नामेंट है उसके लिए बीसीसीआई को क्रेडिट देना चाहिए, उसके लिए प्लेयर्स को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बंद माहौल के अंदर खेलना कभी भी आसान नहीं होता कि आप आपकी इंटरेक्शन बहुत कम है और जस्ट आपकी एक्सेस है डेली लाइफस्टाइल के लिए बहुत लिमिटेड है जी। आप सिर्फ एक लिमिटेड सेट ऑफ लोगों से ही मिल सकते हैं, आप ग्राउंड और सिर्फ होटल में ही रह सकते हैं, तो भी किसी प्लेयर के लिए या किसी स्टाफ के लिए कभी भी आसान नहीं होता। बट यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए एक पूरी बीसीसीआई की टीम को और पूरी आईपीएल की टीम को, और स्पेशली प्लेयर्स को भी, जो इस टूर्नामेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया। तो मैं तो बहुत खुश हुआ जब मुझे सुनने को मिला था कि आईपीएल होस्ट हो रहा है, और इंडिया में जो हालात थे, जो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, उस हिसाब से वो दुबई में लेके गए, उसको यूएई में होस्ट किया। किसी भी और फॉरेन कंट्री में जाके कभी भी आसान नहीं होता किसी अपने प्रीमियर टूर्नामेंट को होस्ट करना। तो ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था और बहुत मजा आया देख के। जिस तरीके से क्रिकेट थी, आप इंडिया में देखते हैं तो थोड़ा सा बैट्समैन डोमिनेटेड हो जाता है, बट यहाँ पे था कि 160, 50 और 170 के मैचेस बहुत ज्यादा देखने को मिले, तो बॉलर्स भी इन्वॉल्व थे। और अगर आप देखेंगे टॉप बैट्समैन भी ऐसा नहीं था कि किसी ने 700-800 रन बना दिए हो, तो 600, 650 और बाकी 500 की लाइन में बहुत सारे प्लेयर्स थे, 500 से ज्यादा जिन्होंने रन बनाए। बट अच्छी बात थी कि जो आप विकेट टेकर्स देखेंगे तो उसमें सारे हैं, आप स्पिनर्स भी देखेंगे, क्वालिटी स्पिनर्स देखेंगे, लेकिन क्वालिटी फास्ट बॉलर्स भी देखेंगे जी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा एज ए क्रिकेट बहुत अच्छा मजा आया ये टूर्नामेंट देखने के लिए, क्योंकि सभी इन्वॉल्व थे, फास्ट बॉलर्स हो, स्पिनर्स हो, बैट्समैन हो, तो ओवरऑल जो गेम था वो बहुत ही मजा आया देख के। टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स के बारे में अगर बात करें संदीपन, शुरुआती में टूर्नामेंट थोड़ा ऐसा लग रहा था कि काफी टीम्स रस्टी थे, लेकिन लीग स्टेज पिक्ड अप वेरी वेल, इट वेंट टू द वायर। प्लेऑफ्स में शायद थोड़ा सा स्टीम चला गया था सारी टीम्स में, और वो जो गल्फ था बिटवीन द टॉप टीम मुंबई इंडियंस एंड द अदर 7 टीम्स, इट वाज वेरी वेरी विजिबल। सो आई थिंक थोड़ा सा वो स्टीम चला गया था टुवर्ड्स द एंड। जी हाँ, I think the same. I mean, Mumbai Indians, obviously there was a daylight difference between Mumbai Indians, the quality of Mumbai Indians team and the other 3 teams which made it to the playoffs. Yeah. So I guess at that point, yes, I agree. And also, as Manvinder said, it is not easy to stay in a bubble and like without you're not visiting. Most of the players were not traveling with the family. So ये हो जाता है कभी-कभी कि जब टूर्नामेंट थोड़ा खत्म होने को आए तो टुवर्ड्स द एंड प्लेयर्स थोड़े से मतलब दे कैन बी लिटिल बिट ऑफ फटीग फैक्टर आ जाता है। बट आई थिंक मुंबई इंडियंस, ये हम इस एंगल से हम देखेंगे तो लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम लॉस हुआ टूर्नामेंट का, लेकिन हम अगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो मुंबई वर टू गुड, सो मुंबई को कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो इसीलिए शायद लगता है। क्योंकि आप अगर दिल्ली और हैदराबाद का गेम देखेंगे, दैट वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव गेम, the eliminator. That's true. लेकिन the gulf between the first and the other teams was very very visible. मनविंदर, काफी सारी चर्चा हो रही है about this Mumbai Indians team being the greatest team of all time, the greatest team in the history of franchise cricket. Do you think that's the case? Do you think this Mumbai team is the greatest of all time? अगर आप जिस तरीके से रिजल्ट्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट टीम होगी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पिछले 8 सालों में 5 बार चैंपियन बने हैं और उसके बाद उसके बाद भी कंसिस्टेंटली आप प्लेऑफ्स में जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपने जिस तरीके से प्लेयर्स को सेलेक्ट की है और उनको फिर बैक किया है। अगर अभी आप बात करते हैं तो हम बहुत आसान है कहना कि जो इंडियन प्लेयर्स मुंबई इंडियंस के पास हैं, डोमेस्टिक अनकैप्ड हों चाहे कैप प्लेयर्स हों, वो बहुत ही बेस्ट प्लेयर्स हैं पूरी आईपीएल के अगर आप देखें। लेकिन अगर आप फिर उनका बैकग्राउंड देखेंगे ना, तो जब बुमराह आए थे तो बुमराह से जब कोई जानता नहीं था जब वो मुंबई इंडियंस में आए हैं, तो उन्होंने ये उनकी कोचिंग टीम को, उनके स्टाफ को क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने उनको एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बनाया। सेम अगर आप हार्दिक पांड्या को देखेंगे, जब हार्दिक पांड्या आए थे मुंबई इंडियंस में तो कोई ऐसा नहीं था कि डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा अलग लेवल की परफॉर्मेंस थी। हाँ, अच्छे प्लेयर थे, सब जानते थे, बट जिस तरीके से उन्होंने उनको मैनेज किया या उनसे वो परफॉर्मेंस निकलवाई। सेम विद ईशान किशन को देखिए, ईशान किशन ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया है एमआई में आने से पहले, बट जैसा उनका सीजन रहा, स्टार्ट उनसे नहीं किया था, देन फिर उसके बाद भी वो 500 रन बनाते हैं आपके सीजन में, तो
इनको पता है कि इनके स्टाफ को, कोचेस को, महिला को, जयवर्धने को, जैसा उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल करी हैं इस टीम से, जी आप ओवरऑल पूरी टीम देखेंगे तो आप कई प्लेयर्स से रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, ये मुंबई इंडियंस ने ही बनाया इन खिलाड़ियों को, इनको जिस तरीके से बैक किया है और जिस तरीके से वो एक आइडेंटिफाई प्लेयर्स को करना भी बहुत जरूरी होता है जी कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऑक्शन में आपको बेस्ट प्लेयर्स ही मिल पाएंगे। आपको कई बार ऐसा होता है कि अनकैप्ड प्लेयर्स पे भरोसा दिखाना पड़ता है, जो आप फाइंड आउट करते हैं आप डोमेस्टिक क्रिकेट देख के, हाँ भाई ये खिलाड़ी मेरे लिए आईपीएल में जाके बहुत अच्छा कर सकता है। फिर आप उनको बैक करते हैं और फिर उनकी तैयारी उस तरीके से कराते हैं कि जब वो प्रिपरेशन में उनकी इतनी हेल्प करते हैं कि जब वो टूर्नामेंट है तो वो 100% दे सके आपके लिए। तो यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए मुंबई इंडियंस को, ओवरऑल रोहित शर्मा को, जिस तरीके से उन्होंने लीड किया इस टीम को। जब से उन्होंने लीड करना शुरू किया है बिल्कुल ही मुंबई इंडियंस एक डिफरेंट तरीके से खेलना शुरू हो गया है, बहुत कॉन्फिडेंट टीम लगती है। अभी आप देखेंगे ना तो सभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऑटो पे हैं, कि जिस प्लेयर्स को अपने रोल्स बहुत क्लियर हैं कि जिस तरीके से आगे उनको खेलना है, किस स्टेज पे उनकी बैटिंग आएगी, किस तरह के ओवर्स उनसे एक्सपेक्टेड है, अगर कैप्टन को किस तरीके से यूज करेंगे, तो बहुत ही क्लियर फंडा है उनका और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस टीम ने परफॉर्म किया है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक सिंपल लाइन में से पूछेंगे तो अभी तक की ग्रेटेस्ट 11 कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट टीम कह सकते हैं आईपीएल की। Manvinder, this is only the second time that a team has defended their title. मतलब 2 बार consecutively they have won the title. No prizes for guessing which is the first team, which is that CSK team of 2010-2011. You have seen that team from close up. I think खेले भी हैं against that team. Where does that team compare with this team? उस टीम में अगर आप देखें तो काफी बड़े प्लेयर थे. Ashwin was up and coming. Raina was up and coming. Ben Hilfenhaus, Dwayne Bravo, Mahendra Singh Dhoni at his absolute peak. So compare that team to this team. Who do you think is the stronger team? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंपैरिजन करना थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि वो जो टीम थी वो चेन्नई के हिसाब से, वो देयर होम ग्राउंड वाज चेपॉक, जहाँ पे थोड़ा स्लो विकेट था, वो उस हिसाब से टीम बनाते थे अपनी। जो अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, सीएस की बात करते हैं, प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट थी उनकी उस विकेट के हिसाब से, मतलब वो बेस्ट टीम थी। अगर आप बात करेंगे चेपॉक में अगर खेलना हो और जिस तरीके से उनकी तैयारी रहती, प्रिपरेशन रहती थी, तो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई विल से। अभी अगर आप एमआई की बात करते हैं तो अगर आप देखते हैं पावर हिटर्स इनके पास हैं, किरण पोलार्ड, और आप बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, कुणाल पांड्या भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके पास रोल थोड़ा लिमिटेड रहता है, बट जब भी उनको पास अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं सिचुएशन में आगे। तो अगर एक मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके के पास इतने बड़े वो स्टेज पे नाम नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन उनसे परफॉर्मेंस, उनके पास लीडर ऐसा था कि उनको पता था कि इस प्लेयर से मैं कैसे बेस्ट निकलवा सकता हूँ। एमआई के पास अगर आप देखते हैं तो एक क्वालिटी टीम है, क्वालिटी प्लेयर्स हैं उनके पास जी। तो दोनों का कंपैरिजन मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि टाइम का भी डिफरेंस हो जाता है, ये नंबर ऑफ इयर्स आप देखेंगे तो। और लेकिन दोनों टीमें अगर आप देखेंगे ना, सबसे अच्छी बात दोनों टीम की है कि दोनों ही कंसिस्टेंट रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 साल का एक टाइम आया जब वो चैंपियन बने और उसके बाद आगे भी थोड़ा इतना कंसिस्टेंट नहीं थे, और वो कुछ सालों के बाद भी कंसिस्टेंसी लूज कर गए। अगर सीएसके को देखेंगे, पहला साल ऐसा हुआ कि जब वो इतनी जल्दी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे जी, नहीं तो वो भी एक ऐसी टीम है कि लगातार कंसिस्टेंटली हमेशा प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है, और आप उनको खेलते हुए देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार, ये चैंपियन बन सकते हैं कभी भी। बिल्कुल, कंपैरिजंस आप डिनाई तो जरूर करेंगे कि करना लाजमी है, लेकिन कंपैरिजंस तो करना हमारा काम ही है मनिंदर। वी गेट आवर पैसा उसी से आता है कि कंपैरिजन करेंगे। संदीपन भी मुझसे अग्री करेंगे। संदीपन, बात तो ये तो लाजमी है कि मुंबई हैव नाउ गॉटन अहेड इन दैट रेस। There's always been a race to be the most dominant team in the IPL. At a time it was 3 versus 3, 3 titles. Suddenly now Mumbai are at 5 and 3. और ऐसा लग रहा है कि मुंबई heading into the big auction as well have a more settled unit. They know who their players are, and suddenly CSK is at a place कि जहाँ पे उनको पता नहीं है कि उनको how they have to go through a complete rebuild. Advantage Mumbai heading into the next half decade maybe. Absolutely, because the top performers are CSK. For example, you take Shane Watson, you take Dwayne Bravo. They are well past of their prime, right? They are not at their peak anymore. So they have to identify new players, like they have done with Sam Curran this year. So they are grooming one youngster. So now at the international and domestic level, now they have to identify new players. Then now they have to groom them. So basically now CSK will go through some sort of a transition phase. They have to
do well in the auction as well, because I'm sure they will release bulk of their players. MS Dhoni also might be he will be playing mostly one or two more seasons, so probably they have to groom a new captain as well. But towards the end, I think CSK ने इस बार जो हमने देखा है कि ऋतुराज जैसे उभर के आए हैं, ब्रिलियंट ओपनर, ब्रिलियंट बैटिंग. फिर हम CSK के हमने अभी सैम करन के बारे में बात किया, हुआ था यूटिलिटी क्रिकेटर ही हैज बीन फॉर देम. सो ऐसे ही इनको न्यू यंगस्टर को ग्रूम करना होगा. तो अगर हम कंपैरिजन के हिसाब से देखें, मुंबई इज अ यंग टीम. आई मीन, आई नो देयर इज कायरन पोलार्ड and there is, I think we are forgetting one thing about Mumbai, that अगर लसित मलिंगा नेक्स्ट ईयर आएंगे तो उसको क्या प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? मुझे नहीं लगता है लसित मलिंगा आएंगे नेक्स्ट ईयर, जगह ही नहीं उनके. एग्जैक्टली. अगर आएंगे भी तो एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट जैसे कि वो पहले थे, 100% वैसे ही रोल में आएंगे, क्योंकि मतलब द डोर्स फॉर माली आर ऑलवेज ओपन इन MI. मतलब ही इज बीन द मोस्ट लॉयल सर्वेंट, तो जब भी आएंगे इन एनी कैपेसिटी he'll be welcome. एग्जैक्टली. सो मुंबई में आई थिंक अगर आप पोलार्ड को छोड़ दे थोड़ा बहुत, तो अभी इमीडिएट उनका ऐसा कोई प्लेयर नहीं है. आई थिंक पोलार्ड का भी थोड़ा सा अब इंटरनेशनल फॉर्म देखेंगे, थोड़ा सा CPL में फॉर्म देखेंगे, तो ही हैज इट्स गोइंग अपवर्ड्स. सो मुंबई में अभी इट्स अ टीम इन इट्स पीक फॉर्म. सो अभी तो कंपैरिजन करना गलत होगा मुंबई के साथ किसी और टीम का. इनफैक्ट IPL में मैं कहीं पर ट्वीट में देख रहा था कि IPL में शायद ऐसा कुछ होना चाहिए कि महागठबंधन, वन टीम इज मुंबई, अनदर इज महागठबंधन टाइप ऑफ टीम, देन दे माइट हैव अ चांस विद अगेंस्ट मुंबई. ये महागठबंधन तो पॉलिटिक्स में चल रहा है काफी, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है संदीपन. देखो बहुत कोशिशें हो रही है. अभी मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा निकल जाता हूँ, नहीं तो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बोलेंगे भाई साहब क्रिकेट पॉडकास्ट है, प्लीज उधर ही रहो. लेकिन वहां से मैं कट लेता हूँ क्विकली. और ये बात बहुत ही अपैरेंट है, और संदीपन ने भी कहा मनिंदर की मुंबई इज अ रिलेटिवली यंग टीम, और इनके जो स्लाइटली यंगर और स्लाइटली लेसर एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स हैं, यू टॉक अबाउट सूर्य कुमार यादव, ऑफ कोर्स ही इज 29 बट ही स्टिल हैज नॉट प्लेड फॉर इंडिया. ईशान किशन वेरी यंग, राहुल चहर वेरी यंग. ये जो तीन प्लेयर्स है, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इट हैज बीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट. If you look at the IPL as a whole as well, a lot of younger players this year have emerged and उन्होंने बहुत ही प्रेशर सिचुएशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, जो हम देखते नहीं थे पहले. मतलब पहले हम देखते थे कि the younger players would just fit in gaps and they were supposed to just आप आगे जाके खेल लो, हो गया तो हो गया. इस साल उनको they've been pushed in the deeper end. तो ऐसे कौन से प्लेयर है मनिंदर जो आपको who have impressed you the most this year? ऑप्शंस बहुत है आपके पास. जी हाँ, इस बार अगर आप बात करते हैं यंग प्लेयर्स में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं. और इसका ना क्रेडिट ये भी है कि अगर हम देखेंगे जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होते हैं हमारा, जिस तरीके से तैयारी होती है, जिस लेवल के प्लेयर्स तैयार होके वहां से आते हैं तो ऑटोमेटिक पिक हो जाते हैं IPL टीम में. उससे पहले देखेंगे तो जो गैप था ना वो बहुत बड़ा था यंग प्लेयर्स, और जो एक आप IPL के बीच में देखेंगे ना वो गैप बहुत बड़ा था, लेकिन अब वो गैप बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि उस लेवल का एक जो प्रिपरेशन है उनको लगातार पूरे साल मिलती है. NCA में उनका खास ध्यान रखा जाता है, या अंडर 19 इंडिया के लगातार मैचेस होते रहते हैं, ऑर्गेनाइज होते रहते हैं. तो जब वो अंडर 19 के रेगुलर मैचेस होते हैं तो उनके पास बेस्ट कोचेज अवेलेबल होते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन उनको मिलती है जी. और जैसा अब कंपटीशन भी होने लग गया है वर्ल्ड कप में, तो ऑलरेडी एक आपको तैयार प्लेयर मिलता है. क्योंकि इस बार आप देखेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब साउथ अफ्रीका में हुआ, उसके कितने सारे प्लेयर्स को IPL टीम्स ने पिक किया, और खाली पिक नहीं किया, उनको खेलने का भी चांस दिया कि स्ट्रेट अवे उनकी प्लेइंग 11 में भी उनको चांस मिला. और जैसे इस बार बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जिनको ये चांस मिला और उन्होंने उस चीज पे छाप भी छोड़ी है अपनी IPL में, जिससे अगर अगले साल बड़ी ऑक्शन होती है तो बहुत सारी टीम्स उनके लिए वो फाइट करेंगे कि ये प्लेयर हमारी टीम में होना चाहिए. लेकिन कुछ प्लेयर्स अगर मैं बात करना चाहूंगा तो उसमें एक ऋतुराज गायकवाड़, जो कि इंडिया ए का भी पार्ट है काफी टाइम से, जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया इस टूर्नामेंट में जी. जब से CSK ने उनपे एक भरोसा दिखाया ओपनिंग करने का, एक तीनों मैच में उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस रही, तीनों मैच में हाफ सेंचुरी लगाई, और जितनी आसानी से वो बल्लेबाजी कर रहे थे ना, सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि उन्होंने किसी भी तरीके से अपना गेम चेंज नहीं किया जी. जो टाइमिंग से डोमेस्टिक में खेलते थे उसी टाइमिंग पे उन्होंने भरोसा दिखाया और वही IPL में उस टाइमिंग से रन बनाए. एक और ओपनिंग बैट्समैन देवदत्त पाडिक्कल, लास्ट डोमेस्टिक सीजन की बात करें तो बहुत अच्छा गया था, ब्रिलियंट रहा था उनका कर्नाटका के लिए,
वैसी ही परफॉर्मेंस इस बार उन्होंने आईपीएल में करी है। जी जी रवि बिश्नोई के बारे में आप बात कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने किंग्स 11 में उस स्पिनर्स को लीड किया वहां पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे किंग्स 11 की बात करते थे ना, तो स्पिनर्स कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो किंग्स 11 ने भरोसा एक रवि बिश्नोई के ऊपर दिखाया था, जी और वो उस पर खरे भी उतरे हैं। जी प्रेशर सिचुएशंस के अंदर उन्होंने गेंदबाजी करी वहां पे उनके लिए, और उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा अपने मेंटोर से, अनिल कुंबले से वहां पे, कुंबले से। क्योंकि अनिल कुंबले वहां पे उन टीम के मेंटोर थे। जी नटराजन की आप बात करते हैं, जो प्रेशर सिचुएशन के अंदर उन्होंने गेंदबाजी करी है, यॉर्कर्स, अगर आप यॉर्कर्स में जो कंट्रोल से उन्हें यॉर्कर्स डाले हैं इस पूरे आईपीएल के अंदर, अगर आप सेकंड बेस्ट देखते हैं तो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर होंगे, और वो उन्होंने आधे यॉर्कर्स भी नहीं डाले हैं। सही है, करेक्ट। तो अगर आप एलिमिनेटर में देखते हैं कि जब वो जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ में यॉर्कर्स लास्ट ओवर में डाले उन्होंने, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, और इसी वजह से उनका इंडियन टीम में भी सिलेक्शन हुआ है। जी, अंडर प्रेशर मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब में। आई थिंक द बॉयज हैव कम इन एंड अंडर प्रेशर जो एग्जीक्यूट किया है, मतलब काफी बार नटराजन को 19th ओवर 20th ओवर दे दिया गया है कि आप डाल दो, खलील है साइड में, लेकिन फिर भी नटराजन हैज बीन चोजन एंड दैट हैज बीन अ बिग थिंग। तो ये है ना कि एक टीम तो आप पे भरोसा करती है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन भी करना बहुत मुश्किल होता है प्लेयर्स के लिए। बट जितनी आसानी से इस बार यंगस्टर्स ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया आईपीएल के अंदर, उससे पता चलता है कि जो फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का बहुत ही ब्राइट है। बिल्कुल। संदीपन, फॉर यू हु हैव बीन द यंगस्टर्स हु इम्प्रेस्ड यू, एंड इस लॉट में कोई ऐसे हैं जो इमीडिएटली टीम इंडिया को ज्वाइन कर सके, एटलीस्ट इन द व्हाइट बॉल फॉर्मेट, डू यू थिंक? Immediately, apart from the names Manvinder has already mentioned, Akshadeep, one from Kings 11 Punjab. I think he did fairly well. I was a bit disappointed with Yashasvi because I was having some high expectation from him, but maybe he got some few rough games in the beginning, and then थोड़ा सा I think team management में थोड़ा सा उसको ज्यादा मौका देना चाहिए था, यशस्वी को जो इतना मौका उसको नहीं मिला शायद जी। इमीडिएट अगर आप देखेंगे अभी टीम इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल टीम इंडिया में जगह कहाँ है, जगह ही नहीं है, दैट्स द मेन थिंग। सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन बाहर बैठे हैं, मतलब उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो अभी जगह का ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इंडिया ए लेवल के लिए देखें तो आई थिंक बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे तो खेलते हैं इंडिया ए लेवल, बहुत आप देखेंगे कार्तिक त्यागी को देखेंगे खेलते हुए ए लेवल में, Ravi Bishnoi, I mean, being a leg spinner, the way he bowled, even at times in some of the games with the wet ball, with the view, I think versus people like AB and the likes of AB etc. were quiet against him. So, and I think the time he spent with Anil Kumble, I think this has done his wonder. I mean, आप देखेंगे कि किंग्स 11 पंजाब ने पहले से ही उनके पास एक फॉरेन स्पिनर थे, अफगान स्पिनर मुजीब था, उनके पास एम अश्विन था जो कि बहुत एक्सपीरियंस है आईपीएल लेवल में और डोमेस्टिक लेवल में, लेकिन उन्होंने उनका फर्स्ट चॉइस स्पिनर था रवि बिश्नोई, दैट वाज इम्प्रेस मी द मोस्ट। तो जैसे मनविंदर ने कहा कि सारे टीमों ने मौका दिया है। हम अगर केकेआर में भी देखें कि कमलेश नागरकोटी, क्या मतलब एक प्लेयर का ये बहुत इम्पैक्ट होता है कि अगर आपका फ्रेंचाइजी आपके ऊपर, आपका टीम आपके ऊपर बैक करता है, क्योंकि लास्ट 2 साल वो बाहर रहे थे, लेकिन केकेआर ने उसको रिलीज नहीं किया था। केकेआर ने उसका ग्रूम किया, उसको रेडी किया। उसका जब टफ पीरियड चल रहा था, जब वो एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी केकेआर के मैनेजमेंट, केकेआर के कोचेस उनके साथ कांटेक्ट में थे। इवन केकेआर और मैं राहुल द्रविड़ का भी नाम लूंगा यहाँ पर कि उन्होंने इनको लंदन भेजा इनके सर्जरी के लिए। सो ये बैक एंड में जो होता है ना एक यंगस्टर के, मैं क्या बोलूं, एक यंगस्टर को ग्रूम करने के लिए आप इनको क्रेडिट दे सकते हैं। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू these people who work in the back end. So at this point, yeah, apart from the names Manvinder has, I will probably take the name of Mavi and Nagarkoti from KKR. They have done fairly well, whatever opportunities they have got. And most important factor of they like, apart from being good fast bowlers, they are excellent fielders as well, which is very rare. You know, fast bowler हम देखते हैं कि थोड़ा सा फील्डिंग का सुस्त रहता है, लेकिन ये लोग मतलब ये लोग actually these players are like, you know, they are excellent fielders. So Rajas, I think हम आरसीबी में भी देखें,
आरसीबी में हमने शायद देवदत्त का नाम ऑब्वियसली आ चुका Obviously है Devdutt, yeah. Devdutt is also emerging player of the year. लेकिन last time पता है आपको emerging player कब मिला था आरसीबी प्लेयर को? In the first season. So it just shows that बहुत टाइम बाद ऐसा कोई यंगस्टर आया है इस टीम में कि अरे आरसीबी फैन कब तक ये सब सोच के सेटिस्फाई होते रहेंगे? कब कहाँ है आरसीबी फैंस के लिए? अभी कब नहीं है। we'll come to that. अभी मेगा ऑक्शन के बारे में एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे नेक्स्ट, लेकिन उसके पहले मनविंदर, what would be your 11 of this season? आपकी 11 क्या होगी इस सीजन की? इस साल अगर आईपीएल की बात करते तो प्लेइंग 11 बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारी परफॉर्मेंस ऐसी हैं जो जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जी। बट अगर आप सिर्फ फॉर्म की बात करते हैं, जो जिन्होंने इस साल अच्छा किया है और जो फॉर्म में लगे हैं और जिन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है इस आईपीएल के अंदर, तो मुझे लगता है कि ओपनर्स होंगे मेरे केएल राहुल और शिखर धवन, और नंबर 3 जो कंट्रीब्यूशन रहा है सूर्य कुमार यादव का, तो ही विल बी माय नंबर 3 जी। नंबर 4 एबी डिविलियर्स, जो कि एवरग्रीन प्लेयर है, और अगर वो 10 बॉल में है, ऐसे प्लेयर है कि 10 बॉलों में गेम चेंज कर सकते हैं। और इस साल जिस तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट भी छोड़ा है आरसीबी के अंदर, जब उन्होंने रन बनाए तो मैक्सिमम एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा, अपनी मैच को एक अच्छे स्कोर की तरफ ले गए हैं जी। नंबर 5 ईशान किशन, मुंबई इंडियंस के लिए सीजन बहुत ही अच्छा किया, उन्होंने बहुत रन्स निकाले और उनको मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने का अवार्ड भी मिला इस बार। और नंबर 6 और 7 जो मेरे ऑलराउंडर्स होंगे वो होंगे राहुल तेवतिया, जिनका बहुत अच्छा सीजन किया है राजस्थान रॉयल्स के लिए जी, और हार्दिक पांड्या की बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वो जब भी मैदान में उतरे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए जी। बहुत ही कम गेंदों में एक बहुत अच्छा स्कोर बनाया, एक फिनिशिंग जो होती है बहुत ही लाजवाब रही उनकी मुंबई इंडियंस के लिए। और देन बॉलर्स की बात करते हैं, लेग स्पिनर में युजवेंद्र चहल मेरे लेग स्पिनर होंगे, अगर क्योंकि जितने आरसीबी की टाइम की बात करते हैं, पिछले 5-6 सालों से लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं उनको, और उनके बॉलिंग अटैक को लीड करते हुए आ रहे हैं जी। और फिर 3 फास्ट बॉलर्स मेरे होंगे, रबाडा, जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह। भाग जाओ, ये मेरी प्लेइंग 11 होगी। बैट्समैन हो तो भाग जाओ बस। इनके खिलाफ बाकी टीम्स की हम एक प्लेइंग 11 बना सकते हैं। घर बैट्समैन हो तो भाग जाओ, बैट्समैन वर्स्ट नाइटमेयर। सोचिए आप, जोफ्रा आए पहले ओवर में, जोफ्रा से पीछा नहीं छुड़ाया कि बुमराह आ गए, बुमराह को पीछा नहीं छुड़ा तो रबाडा आ गए, फिर आगे चहल। अमेजिंग 11, आई थिंक very पावरफुल 11। Sandeepan, quickly 30 seconds, do you agree with it or would you make a change to it? I will rather pick Rashid Khan as my leg spinner head for Chahal. Bas. And I think I will play Ishan Kishan at number 4 and AB de Villiers at number 5 because de Villiers will be my finisher. So our Ishan Kishan ने number 4 में अच्छा किया है. So I'll give him the freedom कि आप जाके express करो अपने आप को. आपको कोई सोचने का जरूरत नहीं कि नीचे कौन है कौन नहीं है. Rahul Tiwari obviously there. And I think the rest of the 11 will be more or less the same. Yeah, indeed, a very strong 11. Actually, it's a shame that I cannot accommodate Trent Bolt in this because we can only play 4 foreigners. बहुत ही बढ़िया रहा ट्रेंट। टेवाटिया थोड़ा सा अच्छा, अगर आप टेवाटिया थोड़ा सा अच्छा स्पिन कर दे तो राशिद खान के अलावा मैं जगह पे मैं ट्रेंट बोल्ट को भी खिला दूंगा। बिल्कुल। लेकिन यू कांट लीव टेवाटिया को इस सीजन आप बाहर नहीं रख सकते संदीपन। वो नहीं बाहर नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि टेवाटिया अगर अच्छा स्पिन कर दे तो मैं राशिद खान की जगह एक ट्रेंट बोल्ट को खिलाऊंगा। एक और बैकलैश आएगा आपको इंटरनेट पे, मैं बता रहा हूँ, ये सुनेंगे लोग तो बोलेंगे सब क्या संदीपन जी हमारे फेवरेट टेवाटिया को आपने बाहर रख दिया। लेकिन टेवाटिया को मैं बाहर नहीं रख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टेवाटिया विल बी माय प्राइम स्पिनर एंड इन दैट केस अच्छा वो अच्छा राशिद बढ़िया। टेवाटिया का कौन बाहर रख सकता है? चलिए होपफुली सिलेक्टर्स और सौरव गांगुली भी सुन रहे हैं, सिलेक्टर्स और सौरव गांगुली भी सुन रहे हैं और कह रहे हैं चलिए इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अभी नजर डालते हैं टुवर्ड्स द फ्यूचर। Of course, Sandeepan, there is talk of a mega auction. You know, अभी आईपीएल खत्म नहीं हुआ कि अगले महीने या 2 महीनों में ऑक्शन, फिर उसके बाद फिर से आईपीएल, खुशियां डबल। तो संदीपन, एग्जैक्टली न्यूज में क्या है? व्हाट इज द रूमर, नॉट द रूमर बट
there have been some developments in this space about the auction. So what क्या हो रहा है उस space में exactly? I think informally BCCI has also confirmed informally. जी. So basically there will be another one new franchisee which will be primarily based in the new stadium in Ahmedabad. So उनका टेंडर शायद ये दिवाली के बाद ही आ जाएगा. So और मेगा ऑक्शन ऑब्वियसली व्हेन ये न्यू फ्रेंचाइजी इज कमिंग इन तो आपको मेगा ऑक्शन करवाने ही होंगे. मेगा ऑक्शन में हम जैसे देखते हैं कि आप कुछ प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, कुछ को आप आरटीएम से खरीद सकते हैं. सो एक्चुअली अभी जो है मेरे आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो के फॉर्मेट आईपीएल का क्या होगा. कि अगर हम 9 टीम्स लेते हैं तो क्या सेम ही होम अवे करके 2 मैच ही खेलेंगे, क्योंकि इन दैट केस थोड़ा सा मुझे जो पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ओवरडोज हो सकता है जी. सो अब देखना पड़ेगा कि कैसे बीसीसीआई इसको मैनेज करता है जी. और अगर ये भी हो सकता है कि बीसीसीआई 2 न्यू टीम ले आए. और इन दैट केस जैसे हमने एक सीजन में देखा था कि किसी 1-2 टीम के साथ जस्ट एक ही मैच होगा. मतलब जो हमने शायद जब पुणे वॉरियर्स और गुजरात लायंस सो दैट सीजन वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत सारे डेवलपमेंट्स. बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं. एंड द थिंग इज दैट कि आईपीएल इज जस्ट टू लेस देन 6 months अवे, बिकॉज यहाँ के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी पहुंच गई है जी. वहां से आके इंडिया विल प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड एंड देन अगेन वी विल हैव अनदर आईपीएल. जी. Lots and lots of cricket, लेकिन lots and lots of developments will also keep happening. So stay tuned to Cricket News. We'll bring you the latest. मनविंदर, 2 टीम obviously जुड़ेंगे तो you know a lot of players will get split. अभी decided नहीं, अभी एक का final हुआ है. If they do, if obviously the whole Ahmedabad franchise thing is all but confirmed. Like there are very strong rumors. Let me put it that way. There are very strong rumors of it happening, and you'd like to think that Suresh Raina probably will lead that franchise. लेकिन मनविंदर, अगर मेगा ऑक्शन की बात करें तो which teams do you think will need a complete wipeout and a complete rebuild? क्योंकि ये जो process है of rebuilding your team, it's very intensive. आपको फिर से देखना पड़ता है कि who do you want, what do you want, and then build it again. Time लगता है to build a franchise. You know from Mumbai Indians and Chennai Super Kings how they've retained a core and it has helped them, win titles. लेकिन ऐसे कौन से 2 franchise है according to you that need to complete rebuild in the mega auction? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी टीम, जब अगर मेगा ऑक्शन होगा, आपके जो प्लेयर्स को आप रिलीज करेंगे, हर टीम के अंदर उनके अगर आप देखेंगे ना, जो पिलर्स हैं, 3-4 पिलर्स को तो वो जरूर किसी तरीके से रिटेन करने की कोशिश करेंगे. देन उनके अराउंड आप अपनी टीम बनाते हैं. अगर आप पूरा ही सेटअप चेंज करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है टीम के लिए. ये मैं कहूंगा कि तब होता है जब आप सीजन आपका सिर्फ 1 या 2 मैच जीते हैं और बिल्कुल ही सीजन में आप कुछ अचीव नहीं कर पाए. लेकिन इस बार देखेंगे ना तो बहुत सारी टीम ऐसी थी जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन जब फिनिश किया तो 12 पॉइंट्स पे फिनिश किया उन्होंने. तो एक और अच्छा मैच खेलते तो लोग क्वालिफाई कर जाते जी. बहुत ही क्लोज था. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मैक्सिमम टीम ऐसा ही करेंगी कि जो उनका कोर ग्रुप है, या उनको लगता है कि हमारे 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं कि ये हमारे पिलर्स रहेंगे, तो उनको रिटेन करने की कोशिश करेंगे, या राइट टू मैच का कार्ड अगर अवेलेबल होता है तो वहां से उनको पिक करने की कोशिश करेंगे जी. ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है किसी भी टीम को चेंजेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करते हैं दैट मीन्स कि आपने पिछली ऑक्शन में आप ये मान गए हैं कि जो आपने प्लेयर्स पिक करे थे वो ठीक नहीं थे जी. तो प्लेयर्स कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी टीम आपकी खराब होगी. कभी कभी कुछ कमियां रह जाती हैं कि आपके पास एक फिनिशर का रोल फिनिश आपको करने के लिए कोई प्लेयर नहीं अवेलेबल मिलता है, आपके पास एक स्ट्राइक बॉलर की कमी आपको लगती है, क्वालिटी स्पिनर्स रह जाता है आपके पास, या आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रह जाता है कि आपके एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन नहीं है, सारे राइट हैंडर हो गए जी. तो वहाँ आप 3-3, 4-4 प्लेयर्स या कुछ पिक करने की कोशिश कर सकते हैं, या जो पिछले साल प्लेयर्स आपके पास थे और आपको लगता है वो अच्छे प्लेयर्स हैं तो उनको आप वापस लेने की कोशिश करते हैं ऑक्शन के अंदर जी. बट मेरा ये मानना है कि अगर आपका सीजन बिल्कुल ही खराब नहीं गया है, जो कि इस साल किसी भी टीम का नहीं रहा है, तो आपको कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप कुछ जो मेन पिलर्स हैं आपके, उनके आसपास आप कुछ नए फेसेस लेके आए, या जिन प्लेयर्स को आपने पिछले साल मिस किया है, जो क्वालिटी आपने मिस करी है, उनको आप पिक करें ऑक्शन के अंदर जी. लेट्स टॉक अबाउट द टीम्स यू रिप्रेजेंटेड, द 2 of them. पहले तो केकेआर से शुरू करते हैं.
and then let's go to RCB. KKR, of course, ऐसा लगा इस साल की they have packed the team with a whole lot of superstars, लेकिन at a point ऐसा लग रहा था कि it was not working at some point. Andre Russell is at a slightly older age, wasn't clicking. Sunil Narine hit and miss. So is KKR in a position where they have to rebuild? Look at a auction and say, okay, do we have to replace Russell? Do we have to replace Narine? What are your thoughts on that first? And then obviously you can talk about the other bits also at KKR. I think KKR का जो सीजन रहा है बहुत ही अप एंड डाउन रहा है. Like अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे तो भी इस तरीके से रही हैं कि बहुत इनकंसिस्टेंट रही हैं. कोई कुछ मैचेस में बहुत ही ऐसा देख के टीम को लगा है कि बहुत ही यार द टीम इज वेरी मच सेटल्ड, बट वो नेक्स्ट मैच में ही इतना कुछ परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंसी दिखी है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में कि आपको लगता नहीं कि यार ये टीम सेटल नहीं है. एंड देन सबसे जो सरप्राइजिंग मूव था वो था दिनेश कार्तिक का बीच में मिड सीजन में कैप्टनसी छोड़ना, क्योंकि आपकी जो टीम है वो प्लान करती है कैप्टन को लेके. आप कैप्टन जिन पे भरोसा दिखाते हैं आप वो प्लेयर्स को पिक करते हैं ऑक्शन में. एंड देन जब आपके मिड ऑफ द सीजन कैप्टन ही एक चेंज हो जाते हैं तो वहां से टीम का थोड़ा सा माहौल खराब होना शुरू हो जाता है. देन आंद्रे रसल जिस हिसाब से प्लेयर हैं, अगर वो फिट हैं तो मुझे लगता है उनको डेफिनेटली आप उनको रुकना चाहिए केकेआर के पास, और केकेआर भी कोशिश करेगी कि उनको अपने पास रखने की, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं. उनके अराउंड आप प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं, आप टीम बना सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी की जो आप 20 बॉलों में ही गेम को चेंज कर सकता है बैटिंग करते हुए, पूरे 4 ओवर आपके लिए कर सकता है. तो ऐसा खिलाड़ी पिक करना बहुत मुश्किल होता है. अगर आप वापस ऑक्शन में चले गए तो मुझे लगता है अगर वो फिट होंगे तो आई थिंक सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर हो सकते हैं आईपीएल के. जी, बट डेफिनेटली उनको एक कैप्टनसी एक ऐसी चीज है जो उनको रोल देखना पड़ेगा. अगर वो मॉर्गन को रिलीज करते हैं तो एक कैप्टन बिल्कुल एक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दिनेश कार्तिक का भी सीजन की भी बात करेंगे तो इतना अच्छा नहीं गया उनका सीजन जितने अच्छे वो प्लेयर हैं. तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी इस बार टीम के अंदर. बट उनके पास कुछ यंग खिलाड़ी हैं जो अगर उन पे भरोसा दिखाया भी है उन्होंने, शिवम मावी पे, नागरकोटी पे, अगर कुलदीप यादव उनके पास हैं, अगर आपके पास वो तरीका है इनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने का तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. Who are the 3 players you would अगर मैं आपको if you were in the management, which are the 3 players you would retain? You get an option only to retain 3 players. कौन से रहेंगे? तो मुझे लगता है आंद्रे रसल बिल्कुल रिटेन करना चाहिए उनको जी. एंड देन आपके पास बाकी मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट बहुत है, लेकिन इट्स बेटर कि आप लोग इनको रिलीज करके वापस ऑक्शन में लें जी. क्योंकि आपको जो आपकी जो अगर आप सेकंड नंबर पे आप सुनील नारायण को रिटेन करते हैं 10 करोड़ में या जितने का भी वैल्यू सेट करते हैं जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर पे अगर आप देखते हैं तो एक सुनील नारायण आ सकते हैं, शुभमन गिल हो सकते हैं, आपके लिए कुलदीप यादव हो सकते हैं या मॉर्गन हो सकते हैं. क्योंकि अगर आप सुनील का भी देखेंगे तो इस बार एक्शन के काफी इश्यूज थे उनके जी. जब सीजन स्टार्ट हुआ तो मुझे लग रहा था कि जब सुनील नारायण ने जब थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशंस में बॉलिंग करना शुरू करा, स्लॉग ओवर्स में, सर्कल में, तो वो अपना जो पुराना जो फॉर्म था ना वो वापस, क्योंकि मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, मैंने काफी विकेट कीपिंग भी करा है, वो ऐसे खिलाड़ी उनको प्रेशर चाहिए. अगर उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना है तो आपको सर्कल में उनको पुश करना पड़ेगा या स्लॉग ओवर्स में पुश करना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में बहुत सारी टीम्स उनको प्लान करके खेलती हैं या रिस्क नहीं लेती हैं तो बहुत इनइफेक्टिव हो जाते हैं जी. लेकिन उसके बाद एक्शन का हुआ तो फिर वापस से थोड़ा सा ऑफ फॉर्म लगे मुझे. लेकिन एक ऑलराउंडर के रूप में देखते हैं तो वो भी एक बहुत क्वालिटी खिलाड़ी है, क्वालिटी काम कर सकते हैं अपनी टीम के लिए जी. ऑफ कोर्स केकेआर के बारे में हमने बात करी, बट संदीपन, ब्लैंक कैनवस फॉर यू. Pick one team or a couple of teams that you think will need to go into a major rebuild into the mega auction. CSK obviously. Yeah. CSK, they have to change majority of their team. Probably they will retain the only MS Dhoni. And maybe they can do with Rituraj because they haven't spent much money to buy Rituraj. Deepak Chahar maybe? Sorry, Deepak Chahar. I am not sure. They can buy it through RTM also. They'll get the odds on RTM. Deepak Chahar को आप ऑक्शन में खरीद भी सकते हैं. रविंद्र जडेजा, yeah. More than Chahar, I will definitely retain Jadeja. 36 years young.
रविंद्र जडेजा अजूबा है, अजूबा। And you definitely और किसी भी I टीम के लिए think फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। या जी जी जी। और आई थिंक पंजाब को भी थोड़ा बहुत चेंजेस करने की जरूरत है, लेकिन पंजाब आई थिंक दे दिस टाइम आई थिंक दे हैव टीम का कोर दे हैव फाउंड इट They राइट, have बट found the core. somehow they did not perform, but towards the end जब उसने टीम ने पिक किया तो आपने देखा कि what पंजाब is capable of, this पंजाब team is capable of। शायद मैक्सवेल को रिप्लेस करे, मे बी। हाँ ऑब्वियसली मैक्सवेल को रिप्लेस करके एक और उनको शायद एक और अच्छा ऑलराउंडर, फॉरेन ऑलराउंडर भी चाहिए, क्योंकि नीसम इज गुड बट ऑन दीज कंडीशंस यू नो वेदर ही can be the right first choice all-rounder or not, that's the question to be asked। but I think CSK, मुझे लगता है कि RCB ने भी अपना core they have found, so apart from CSK I think I don't see any other team going for a complete revamp. Even Rajasthan also. My trump card, yes, I was just about to talk about this. I think Rajasthan have to do a rebuild. मुझे लगता है कि ये जो रिलायंस है आपका, कि पहले तो मुझे लगता है स्टीव स्मिथ इज द बेस्ट टेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बेटर देन विराट कोहली, बट आई डोंट थिंक ही इज अ T20 प्लेयर। एक तो अगर आप इन तीन धुरंधर को लेके खेलते हैं, आप जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स एंड बटलर, you don't have to look beyond them, but that fourth foreigner has always plagued them कि आप स्टीव स्मिथ को खिलाएं, अभी उनको लिया तो है तो उनको खिलाना पड़ेगा। उनकी जगह पे अगर आप किसी एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या you get in a good foreign spinner maybe in an auction, then that team can do wonders. Or obviously I tend to agree with you. I think I missed a point. I tend to agree with you. और एक और चीज आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर जो होगा कि IPL अपने नॉर्मल जो विंडो है मार्च अप्रैल में, इस विंडो पे होगा जी। तो इस विंडो पे क्या होता है कि सेकंड जब टुवर्ड्स द एंड होता है ना, इंग्लिश सीजन चालू हो जाता है जी। तो इंग्लिश प्लेयर को थोड़ा सा अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इस साल तो चलो जो आर्चर और बटलर और स्टोक्स ने खेल लिया बस, जो लेकिन स्टोक्स वी नो बाद में आए, लेकिन आप तीन इंग्लिश प्लेयर पे अपने टीम का कोर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अवेलेबिलिटी का इशू रहेगा नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। और ऑल्सो एक इंडियन तेज गेंदबाज, लाइक दे हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड विद दैट इंडियन फास्ट बॉलर। आपने अंकित राजपूत को खिलाया, उनाडकट को भी खिलाया, और फिर वरुण एरन भी खेले, लेकिन वो क्लिक नहीं हुआ, नीदर ऑफ देम क्लिक। सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर राजस्थान टू गेट इनटू अ मेजर रीबिल्ड ahead of this auction। लेकिन I tend to agree with मनविंदर as well कि आपका जो कोर है, आपने उनके साथ काम किया है for all this while, एकदम से उसको पूरी तरह से तोड़ देना और फिर से जोड़ना will be a little tough। लेकिन राजस्थान के पास पोटेंशियल काफी सारा है, लेकिन it has not translated to results indeed। मुझे इसमें सुमित ये भी लगता है ना कि जैसे राजस्थान रॉयल्स की टीम है जी, जो उन्होंने एक फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर जो एक भरोसा दिखाया था, या जो ऑक्शन में जो प्राइस लगाई थी, उसके बाद उनके पास वो उतना बजट नहीं बचता कि नहीं है कैप या अनकैप प्लेयर्स को, इंडियन प्लेयर्स को पिक कर सकें, क्योंकि आप देखते हैं जोफ्रा आर्चर जिस तरीके से उनको रिटेन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो आपके नंबर 1 खिलाड़ी होने चाहिए 100%। अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो सकती है ऑक्शन में। बिल्कुल। देन बेन स्टोक्स, जोस बटलर, अगर आप ये सब खिलाड़ी ऐसे हैं कि बहुत आपको सस्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके अगर ये खिलाड़ी को एक मिड सीजन या सीजन से पहले अगर इंजरी हो जाती है, अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास वो प्रॉपर बैकअप भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास फॉरेन प्लेयर्स का बैकअप नहीं है, देन आपके पास इंडियन खिलाड़ी ऐसे इतने ज्यादा नहीं है कि या इतनी ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप वो चेंजेस कर सकें या आप एक विनिंग टीम बन सकें जी। ये तो इस साल राहुल तेवतिया का सीजन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है जी, कि जिस नंबर पे आके उन्होंने बैटिंग करी है या ओवर्स भी डाले। अदरवाइज देखेंगे तो इंडियन खिलाड़ी का ना बैकअप भी नहीं है उनके पास जी। तो वो जरूर उनको देखना पड़ेगा कि वो जिस तरीके से फॉरेन प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो प्लानिंग रहती है, जो पर्स वो यूज करते हैं, वो उसका काफी हद तक उनको इंडियन प्लेयर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि इंडियन प्लेयर्स का कोर जो होता है, ग्रुप होना चाहिए, वो भी आपके पास अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक चैंपियन टीम बन पाते हैं। जी जी। I think the last team that I would love to talk about is Hyderabad, one of my favorite franchises। बहुत ही बढ़िया टीम,
मुझे everyone's second favorite. IPL's New Zealand. IPL's New Zealand. लेकिन न्यूजीलैंड से आपने अच्छी बात छेड़ ली. मिस्टर केन विलियमसन रिटेन करे या छोड़ दे? Obviously return करेंगे. Obviously return करेंगे. काफी चेन्नई में बवाल हो रहा है संदीपन की विलियमसन MS धोनी के रिप्लेसमेंट बन सकते हैं इन द टाइम टू कम. तो हाँ हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट सीजन तो नहीं आवाजें आ रही है. नेक्स्ट सीजन तो नहीं, ऑफ कोर्स. लेकिन वहां से आवाजें तो काफी आ रही है चेन्नई से कि विलियमसन को लेके आओ, लेट हिम बी MS धोनीज अंडरस्टडी फॉर 1 or 2 सीजंस, फिर स्मूथ ट्रांजिशन टू कैप्टनसी. लेकिन इस चीज के बारे में हम जितना भी बात करें उतना कम है. हर टीम पे हम एनालाइज करते ही रहेंगे. सुबह का दोपहर हो जाएगा, दोपहर का शाम हो जाएगा, शाम का रात हो जाएगा. लेकिन एक छोटी सी बात, अगर आप देखिए एक और आ गया बात अभी. नहीं, since you are talking about I think हैदराबाद, एक प्लेयर शायद थोड़ा सा उस टीम में ज्यादा डिजर्व करते हैं, वो है मोहम्मद नबी. इस सीजन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उसको ज्यादा मौका मिलेगा, और ये कंडीशन तो उनका ऑलमोस्ट होम कंडीशन है, क्योंकि दुबई अबू धाबी में ये लोग बहुत खेलते हैं जी, अफगानिस्तानी प्लेयर्स जी, बट उनको शायद मौका नहीं मिला है. तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन बहुत सारे टीम शायद मोहम्मद नबी के लिए जाएंगे, क्योंकि ही इज अ वेरी क्वालिटी ऑफ स्पिनर. कोई भी फ्रेंचाइजी में जाएंगे तो उनको रेड कारपेट से न्योता दे देंगे, कोई भी फ्रेंचाइजी. जैसे कि गौतम गंभीर ने भी बहुत कुछ दिन पहले बोला था कि मोहम्मद नबी अगर इस फ्रेंचाइजी की जगह किसी और फ्रेंचाइजी में होते 14 मैच खेलते एक सीजन. बिल्कुल. मनविंदर, आपके विचार इस पर? नहीं, ऑब्वियसली सनराइजर्स की बात करेंगे तो एक, अगर आप, मैंने कई बार बोला भी है कि एक लिमिटेड टीम है लेकिन क्वालिटी टीम है जी. और जैसे आप मोहम्मद नबी की बात करते हैं, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है. खाली एक बॉलिंग नहीं, उनका बैटिंग का भी काफी अच्छा मजबूत पक्ष है उनका जी. और लेकिन अब वही बात होती है कि सनराइजर्स जिस तरीके से पूरी टीम बनी हुई है, अगर आप डेविड वार्नर को आपके कैप्टन है और हमेशा 500 रन बना के देते हैं, दूसरा आप क्या राशिद खान को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, तीसरा जिस तरीके से आपने ऑक्शन में प्लानिंग रही है, आपके पास इंडियन आपके पास एक्सपीरियंस बैट्समैन ज्यादा नहीं है जी, तो इसीलिए आपने केन विलियमसन, जो कि मुझे लगता है कि नंबर 4 आपका उनका बेस्ट प्लेस नहीं है बैटिंग करने का, लेकिन नंबर 4 पे आके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी. तो 3 खिलाड़ी तो आपके पास ऐसे हो गए कि आपके पास आप उनको चेंज कर ही नहीं सकते हैं जी. और अब चौथा बचता है, तो जिस तरीके से विकेट्स थी जैसी उनकी टीम की अगर आप बात करेंगे तो जेसन होल्डर को जगह मिली है क्योंकि उनके पास एक फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ रही थी उनको. भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए थे. अगर भुवनेश्वर कुमार होते पूरे सीजन के लेवल पर तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद नबी को खिला सकते थे, क्योंकि उनके पास पेस बॉलर, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर उनको मिल जाता. तो मोहम्मद नबी एक ऑलराउंडर का कमी जो पूरी थी वो पूरी कर सकते थे जी. लेकिन वो जस्ट एक फास्ट बॉलर्स, उनके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो जेसन होल्डर के साथ गए. तो क्योंकि आप फॉरन पे 4 ही खिला सकते हैं जी. और वो 4 खिलाड़ी, आप 2 तो आपके खिलाड़ी पक्के ही होते हैं जब भी आप टीम ऑक्शन में पिक करते हैं, 2 या 3 खिलाड़ी आपके पक्के होते हैं. चौथे के बारे आप हमेशा सोचते हैं कि यार मेरी ऑक्शन कैसी गई है, मेरे पास इंडियन प्लेयर्स किस जगह पे हैं, देन आप चौथा प्लेयर आप फॉरेन खिलाड़ी में से पिक करने की कोशिश करते हैं जी. इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद नबी को खेलने का मौका नहीं मिल रहा. अदरवाइज एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है जी. I would love to see मोहम्मद नबी इन CSK, क्योंकि कंडीशन जो चेपॉक में होंगे वो आइडियल होंगे, और CSK को ड्वेन ब्रावो जो फिनिशर का रोल कर रहे थे बैटिंग में, और जडेजा के साथ ऐसे एक फॉरेन फिनिशर के रोल में भी मोहम्मद नबी को अच्छा मौका मिल सकता है वहां पर. तो CSK में आई थिंक टीम लाइक CSK विल बी आइडियल फॉर मोहम्मद नबी. इंटरेस्टिंग. संदीपन का बस चले तो सारे अच्छे प्लेयर CSK में ही चले जाएंगे और KKR में सारे फाइनल CSK KKR ही हो जाएंगे. लेकिन नहीं, आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, it's been an incredible IPL season, very competitive. Of course, एक team above everyone else, they've been superior in quality, लेकिन matches have been close. और हमें तो बहुत मजा आया है to cover all of the games, to bring this podcast to everyone, and to have Manvinder Bisla on, of course, 4 episodes of the podcast this campaign. So big thank you to Manvinder Bisla for joining us. Hope we have built a relationship, a long-lasting relationship, which will enable us to get you back for the many series that are going to follow. India playing in Australia next, England coming to India, and then of course, फिर से
new IPL season, new things. Manvinder Bisla, thank you so much for being a part of Cricket News this IPL. थैंक यू सुमित, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे बहुत मजा आया आपके साथ काम करके और बहुत अच्छे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ हमारा एंड जिस तरीके से बात हुई रियली मेरे को भी ऐसा लगता है कि हम लोगों को इस बारे में और इसको फ्यूचर में आगे बातें करनी होंगी और पॉडकास्ट को कैरी ऑन करना चाहिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी 100%, and big thank you to Sandeepan Banerjee for being the evergreen constant, for always being there, for always being a part of this podcast and taking it to where it is today. Sandeepan, thank you for joining us today. Thank you, Sumit. Thank you. Thanks a lot. जुड़े रहिए क्रिकेट न्यूज के साथ throughout the India-Australia series, England of course coming after that, and of course the IPL. Wishing everyone on behalf of us a very happy Diwali. Safe रहिए. Please make sure that पटाखे मत जलाइए. It's banned by your government. अभी तो सुन लीजिए. And please ensure that you have a safe Diwali, maintain social distancing, wear your masks, take care, be safe. Thank you so much everyone for joining us.